So we were discussing about the group 2 elements, the alkaline earth metals. So these are the group 2 elements, right? So the physical properties we were discussing in this, we will be discussing about the hydration enthalpies. So hydration enthalpy we have already discussed. Along the period, when we move along the period, the size, it actually decreases. Okay, so the group 2 elements, the alkaline earth metals, they are having size smaller than the alkali metals that are the group 1 element. Okay, due to their small size, they are having a greater magnitude of the positive field around them. Okay, so as I already told you that hydration enthalpies, they are the energy released when the ion is totally hydrated. Hydrated का मतलब क्या है कि जो water molecules हैं, they have surrounded that positive ion completely. जितना साइज छोटा होगा और जितना पॉजिटिव फील्ड ज्यादा होगा, ओके, जितना पॉजिटिव फील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या है, दैट दिस पॉजिटिव आयन इट विल बी अट्रैक्टिंग मोर ऑफ द नेगेटिव आयन स्पीशीज टुवर्ड्स इटसेल्फ. So the more water molecules will be attached to it and the greater will be the hydration of this particular ion. Okay, and in this process the hydration enthalpies released will be more. तो इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट, क्योंकि ये जो आपके आयंस बनते हैं देयर बेयर स्मॉल साइज देन द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, so the hydration enthalpies they are maximum and they will be existing as the hydrous ion. So instead of MgCl2, ठीक है, they will be existing as the hydrated ion where the 6 water molecules they will be surrounded. जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, it will just be simply existing as NaCl, KCl. Okay, but in case of group 2 elements they will be existing as the hydrated ion, not the anhydrous ion. तो वो वहां पर anhydrous है और ये यहाँ पर क्या है, hydrated ions है. Coming to the next is electronegativity. Electronegativity values, again in this context we will be talking about the tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो हैं, सिंस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो हमें पता है क्योंकि एस ब्लॉक हैं, तो ये देने में ज्यादा कर रहे हैं, दे बिलीव इन डोनेटिंग, सो दैट्स व्हाई दे विल बी फॉर्मिंग द कैटायंस. But in general, if we see the trend of group 1 and group 2 elements, so you know that the electronegativity value, it increases along the period. तो पीरियड में जब आप मूव करते हो तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है. ओके, सो इन दिस कंटेक्स्ट इफ वी कंपेयर देन द एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, द बेरिलियम. Okay, the beryllium is having high electronegativity as compared to the other elements. तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 से जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अप्रोक्सीमेट ऑफ 1.5 है. ओके, तो यही अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करूं तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फर्स्ट मेंबर की ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई, जैसे लिथियम है यहाँ पर, तो लिथियम के कंपैरेटिव जो बेरिलियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज मोर, सो इट विल बी formed in the covalent bond formation or it will be obtained in the covalent compounds. पढ़ा हुआ ना हमने, लिथियम और बेरिलियम के कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं rather than ionic. तो कोवलेंट का मतलब क्या है, that they are having small size, high polarization power. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइज करेंगे ये. Okay, and this will result in the formation of covalent compounds rather than the ionic compounds. तो ionic की बजाय ये जो first members हैं, they will be involved in the covalent compound formation. Now coming to the next is oxidation states.
So as I already told you that these members, they will be having the oxidation state of +2, okay, rather than +1. अब suppose if I take the example of beryllium, तो इसकी electronic configuration ये है, okay. So here beryllium, after losing one electron, it will be having the configuration 1s2 2s1. तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो शो कर सकता था. Why it is showing +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? Where for the release of the second electron, the ionization energy is more. तो आपकी जो second ionization energy की वैल्यू है वो first से भी ज्यादा है. So why they need to lose that second electron at the rate of high ionization energy? वो एक इलेक्ट्रॉन भी तो लूज कर सकते थे, ओके. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए जितनी आयनाइजेशन एनर्जी है उससे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड को लूज करने में लग रही है. नाउ व्हाट कैन बी द रीजन व्हाई दे आर नॉट एक्चुअली फॉर्मिंग द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, रादर दे आर इन्वॉल्व्ड इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके. सो द रीजन इज दैट firstly, after losing these two electrons, they will be achieving the nearest noble gas configuration. So when they are going to lose these both electrons, तो आपकी configuration रह जाती है 1s2, ठीक है. That is actually the configuration of helium, which is the nearest noble gas. So that's why they believe in the, or they will be showing the +2 oxidation state where they will be losing both of their electrons. The second reason, the second is stronger lattice. After losing both the electrons, जब वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर जाते हैं, तो जो आपका डाइवेलेंट कैटायन बनता है, the divalent cation like Mg2 positive, Be2 positive. If we talk about their lattice, if we talk about their crystal lattice arrangement in the solid state, तो divalent cation जो बनता है उसका साइज छोटा है, okay, and it fits better in the lattice arrangement. The size of this divalent cation is small, that's why it fit better in the lattice crystal arrangement. तो जो सॉलिड में इसका अरेंजमेंट बनता है डाइवेलेंट कैटायन का, क्योंकि यहाँ पर इसका आयनिक रेडियस जो है वो कम हो जाता है, ओके. सो दैट्स व्हाई मोर इज द लैटिस एनर्जी रिलीज्ड फॉर द डाइवेलेंट कैटायन एज कंपेयर टू द मोनोवेलेंट कैटायन. तो अगर आप मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट कैटायन की लैटिस एनर्जी को रिलेट करो तो वो डाइवेलेंट कैटायन के लिए ज्यादा निकलती है. Why? Because divalent cation का जो साइज हो जाता है वो छोटा हो जाता है, you know, ठीक है. तो साइज छोटा होने का मतलब क्या है कि जो उसका लैटिस अरेंजमेंट में फिटिंग है that will be perfect, okay. So it will be having more perfect, more compact lattice arrangement in the solid state. So this is the second reason, okay. The third reason is about their hydration enthalpies. So when they are released in the water, okay, when these divalent cations they are released in the water, again due to their small size and having the more positive field, they will be maximum hydrated. तो थर्ड आंसर है या थर्ड रीजन है आपका हाइड्रेशन एनर्जी का. So based on these three observations, based on these three generalizations, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, दे बिलीव इन फॉर्मिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2. ओके, सो बाय अटेनिंग दिस दे विल बी अचीविंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी. तो ये सारे जो है वो मोनोवेलेंट कैटायन के साथ इन कंपैरिजन में है. तो मोनोवेलेंट कैटायन जो है वो इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं शो करता है जितना ये डाइवेलेंट कैटायन जो है वो शो करता है, though it is having the second ionization energy value more as compared to the first ionization energies. Okay, so if I talk about, so MgCl2 will be preferred in comparison to MgCl.
तो हम MgCl को प्रेफर नहीं करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, हम ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? फॉर MgCl2, because in this case it is more hydrated. The size of the cation is small and hydration is more, and it is having more electropositive character at this time. ठीक है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या मतलब क्या है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसकी जो लूज करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा बन रही है. मोर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मैग्नीशियम दैट इज शोइंग इन दिस केस, एंड दिस टेंडेंसी इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप व्हेन यू मूव फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम. ओके, तो जब आप मैग्नीशियम से बेरियम नीचे आओगे तो ये टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की देने की, इलेक्ट्रॉन्स देने की जो टेंडेंसी है दैट विल इंक्रीज, बट द फर्स्ट मेंबर it will not easily give that electron because it is electronegative as compared to the rest members. साइज छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है कि that it will be showing more of its electronegativity, tendency to attract shared pair of electron, rather giving the electron it will be having the shared pair tendency to attract that. Okay, तो उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई द बेरिलियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इट विल बी इन्वॉल्व्ड इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो बेटा सारी प्रॉपर्टीज में हम सेम वही चीजें जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं. ओके, तो यही इनकी जो है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने इनकी सारी जनरलाइजेशंस जो हैं वो देनी है. Okay, so the next is again metallic character. Next is metallic character. Metallic, that means we will be seeing that how much tendency they will be showing to form a cation, okay, in order to show the metallic character. So metallic character it will just be dependent on the metallic bond, ठीक है, कि उनके बीच में intermetallic bond जो है वो कैसा है. And I've already told you that for the intermetallic bond the two main conditions are the kernels and the valence electrons. Okay, the size of the kernels should be small and the valence electrons they should be more. तो आप देख सकते हो इफ वी कंपेयर देम विद ग्रुप 1 एलिमेंट्स, तो अगर हम इनको ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो वहां पर कर्नल्स का साइज जो था वो बड़ा था और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक था, बट इन दिस केस वी कैन सी द कर्नल्स दे आर हैविंग स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, और आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो बढ़ गए हैं, दे आर 2 नाउ फॉर द अल्कलीन अर्थ मेटल्स. So can we see here or can we say that here the small or the strong intermetallic bond will be formed. तो ये जो मेटल्स के बीच में बॉन्ड है जो फॉर्म होगा, इंटरमेटालिक बॉन्ड बिटवीन द कर्नल्स एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट विल बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. हाँ जी, क्लियर बेटा? Is this clear? तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा जो है इनका क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर विल बी स्ट्रॉन्ग. So they will be having a strong crystal lattice structure. क्योंकि बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड स्टेट में जो ये आयंस हैं they will be held in a very firm way, in a very strong way. Okay, so corresponding the lattice arrangement will be quite strong for them and they will be having a closed packed structure. Okay, clear beta yahan tak? Is this clear till now? ठीक है जी, only one student, बाकी right. Okay, so we have discussed about their metallic character. Now coming to the next is about their densities. तो अब डेंसिटी देखते हैं that how the density it varies according to the group 2 elements.
So what you think, they will be having low density or high density? कैसी होगी बेटा डेंसिटी इनकी एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स आल्सो? अगर मैं कंपैरिजन में चलूं तो हाँ जी, अभी बताया मैंने मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम डेंसिटी बताएंगे. डेंसिटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग कितना उनका वेट होगा. यस हाँ जी बेटा, एनीवन फॉर द डेंसिटी पार्ट? कैसी डेंसिटी होगी इनकी? हाई होगी कि लो होगी एज कंपेयर टू द ग्रुप 1 एलिमेंट्स? अभी मैंने एक चीज बोली थी दैट दे आर हैविंग अ क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट, राइट? They are having a closed packed structure or closed packed arrangement due to the strong intermetallic bonds that are present between the kernels and the positive charge. तो अगर इनका closed packed arrangement है, so we can say that, yes Raman, we can say that they will be having high density as compared to the group 1 elements, जिनकी density जो है वो कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में ज्यादा स्ट्रांग है. ओके, सो इफ वी आर कंसर्न विद द बॉन्डिंग फैक्टर हियर अबाउट द इंटरमेटालिक बॉन्डिंग दैट द बोथ एलिमेंट्स दे शेयर, द ग्रुप 1 and group 2 elements, out of this the bonding is more in case of the group 2 elements. So that's why in the crystal lattice structure they will be having a very very closed and tight packed arrangement. Okay, तो होल्स कम है, वेकेंट स्पेसेस कम है, जिसके कारण जो इनकी डेंसिटी बन जाती है ये हाई हो जाती है. ओके, बट देयर इज वन एनॉमली टू दिस, दैट इनिशियली द डेंसिटी इट इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम. इनिशियली द डेंसिटी इट इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम. नेचुरली बेरिलियम से कैल्शियम में जाएंगे तो जैसे जैसे साइज जो है, ठीक है, कैटायन का वो जा रहा है तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो बॉन्डिंग है वो ज्यादा फैक्टर स्ट्रांग हो रहा है. ओके, सो इन दिस कंटेक्स्ट द डेंसिटी इट इंक्रीजेस एक्चुअली. क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है. ओके, तो जो डेंसिटी है इनिशियली पहले इंक्रीज कर रही है फ्रॉम बेरिलियम टू कैल्शियम, बट आफ्टर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम योर डेंसिटी इट डिक्रीजेस. ओके, सो इसके बाद कैल्शियम से बेरियम तक जो आपकी डेंसिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है. नाउ व्हाट कैन बी द रीजन? तो सी द डेंसिटी इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर लैटिस, कि उसका लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज्ड पैक्ड है कि नहीं. ओके, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स जो उसका क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, हाई डेंसिटी वाला है, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है. But that actually packing it decreases from when we move from calcium to barium. तो स्ट्रॉन्शियम बेरियम की जो पैकिंग आती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ी सी अनइक्वल पैकिंग में हम चले जाते हैं. ओके, छोटी अगर कोई चीज छोटी होगी तो दैट विल बी पैक्ड इन अ मोर टाइट वे. स्मॉल साइज है तो पैकिंग बहुत अच्छी होती है, बट जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा इट विल अफेक्ट द पैकिंग अरेंजमेंट ऑल्सो. इट विल अफेक्ट द क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ दैट थिंग. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं उनकी टेंडेंसी भी जो है वो चेंज हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि विद द साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो वो उसकी पैकिंग को एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है. ओके, सो ड्यू टू विच देयर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स दे आर अफेक्टेड एंड दिस एक्चुअली डिक्रीजेस द डेंसिटी. क्लियर बेटा? हाँ जी, क्लियर है, राइट. So coming to the next is melting and boiling point. Yes, what do you think the trend will be for the melting and boiling point? हाँ जी बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होगा?
Melting and boiling point, again they will be solely dependent on the crystal lattice structure. ठीक है, किसी चीज को आपने मेल्ट करवाना है तो आप यही देखोगे ना कि उनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं, right? How much forces they are having, whether the forces, the magnitude of the force is weak or strong. तो यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्सेस चलती हैं, they are the intermetallic bonds. Okay, so they share the metallic bond, right? And the tendency of the metallic bond in case of the group 2 element, it is very very strong. अभी बताया हमने, अभी पढ़ा है हमने कि इनके केस में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ द कर्नल एंड हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड फॉर द बॉन्डिंग पार्ट. ओके, सो कॉरेस्पॉन्डिंग द बॉन्ड्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन देम. अगर अब आपने किसी चीज को तोड़ना है, यू हैव टू मेल्ट द सब्सटेंस, दैट मीन्स यू हैव टू ओवरकम देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो आपको जो उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना पड़ेगा. सिंस दे शेयर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटरमेटालिक बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्ड्स आर देयर, तो अगर हमने उनको तोड़ना है, so that means the melting and boiling point values they will be more. ओके, तो यहाँ पर क्योंकि क्रिस्टल लैटिस है, क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट है, तो वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं. ओके, सो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी और अ लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, so their melting and boiling point values will be high. हाँ जी, clear है बेटा? Is this clear? So they are having high melting and boiling point values, right? Okay, coming to the next is coloration. So like the group 1 elements, they were showing some of the flame colors. So same here, they are also giving you some of the colors when they are exposed to the flame. So coloration to flame. We are having different types of elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. Okay, so these elements are there, where the first 2 members, they will not be showing any of the flame. ठीक है, तो first 2 members आपको कोई flame color नहीं देंगे. Calcium will give you brick red, it will give you crimson red. Barium will give you grassy green flame, and again radium will be given you crimson flame. Okay, so procedure is same for all of these. We will be taking their chlorides, जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो हमने उसकी एक पेस्ट बना लेनी है. That paste we have to hold on the platinum wire. ओके, तो आपने प्लेटिनम वायर पे वो पेस्ट ले लेनी है, एंड देन यू विल बी एक्सपोजिंग इट टू द फ्लेम, टू द बर्नर. तो फिर आपने उसको बर्नर के ऊपर रखना है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यू विल बी गेटिंग सम फ्लेम कलर्स. लाइक कैल्शियम, इट विल बी शोइंग यू द ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम के लिए क्रिम्सन रेड आ जाती है, ठीक है, बेरियम के लिए ग्रासी ग्रीन है, अगेन रेडियम के लिए भी क्रिम्सन फ्लेम, राइट. बट यू कैन सी द फर्स्ट 2 मेंबर्स, दे आर नॉट गिविंग यू एनी फ्लेम कलर. तो जो आपके फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं वो आपको कोई भी फ्लेम कलर नहीं दे रहे हैं. नाउ इफ वी मूव टू द कंसेप्ट ऑफ कलरेशन, अगर मैं आपको कलरेशन का बताऊं कि कलर्स क्यों आते हैं, तो हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे गेट एक्साइटेड ऑन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी. ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एंड दे गेट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट. यहाँ पर वो एनर्जी किससे लेंगे? बर्नर से. तो जो आपने उनको बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, दैट बर्नर, इट विल बी प्रोवाइडिंग देम द एनर्जी. ओके, द एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन, वेयर दे विल बी एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल्स. ओके, सो व्हेन दे विल बी रिटर्निंग बैक, जब वो वापस आएंगे, ओके, दे विल बी रिलीजिंग दैट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी फॉलिंग इन सम ऑफ द विजिबल रीजन.
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के विजिबल रीजन में जब वो फॉल करती है, सो वी आर एबल टू सी दीज कलर्स। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। नाउ if we see that why beryllium and magnesium they are not actually giving us any color, so what can be the possible reason? क्या रीजन हो सकता है कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो हमें कलर नहीं दे रहे हैं बट बाकी मेंबर्स दे रहे हैं? हाँ जी, एनीवन? एनीवन बेटा? अभी रीजन भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कलरेशन का, क्या रीजन है? Okay, the reason why beryllium and magnesium they are not actually giving you any color to the flame, the reason is their small size. Size छोटा है, very good Gursamar. They are having the small size. Okay, and due to its small size, the nucleus charge is very high. Okay, तो टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, इसके केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, द टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज भी जो होंगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। क्योंकि साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, हम इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्साइट नहीं कर सकते और वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली देंगे भी नहीं। ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन the flame, the burner that is actually providing them energy that is not sufficient, that they will excite the electrons of beryllium and magnesium. तो जो बर्नर्स है, बंसन बर्नर्स की जो फ्लेम होती है, ठीक है, जो एनर्जी उनसे मिलती है, that is actually not sufficient to excite the valence electrons of beryllium and magnesium. Okay, so due to this reason they are not able to give you any of the flame colors because they fail to excite the electrons in case of beryllium and magnesium. But जब आप बाकियों पे जाओगे, the rest member they are having a large size as compared to the beryllium and magnesium, size बढ़ जाता है, इसीलिए they can easily give colors to the flame where they can easily excite their electrons. Okay, हाँ जी, क्लियर है बेटा? राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो हमने कंपैरिजन में भी पढ़ा है और हमने सेपरेट प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं इनकी। ओके, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने दोनों के फिजिकल एस्पेक्ट्स कर लिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज, सो वी विल बी डिस्कसिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। So chemical properties में we will be discussing firstly about their reducing nature. Both the group 1 and the group 2 members, they are reducing in nature. Now what do you mean by reducing nature of these? हाँ जी बेटा, क्या मतलब है reducing nature का? Yes, what do you mean by the reducing nature?